Give girls the wings to fly, not the pain to cry. With that, ladies and gentlemen, we have heard our 5 speakers till now. Dear audience, it's not only the role of women to uplift the woman, the role of men is also important. With that, it's time to call our next speaker, Dheeraj Kumar, BSc Nursing, 4th year student. We are very excited to hear you. So please welcome Dheeraj with a huge round of applause. रिकॉर्डिंग करेंगे। Thank you, Sakshi, for giving me the opportunity to share my ideas. Let me breathe. A very warm and pleasant good morning to all of you present over here. Honorable chief guests, respected doctors, teachers, and my fellow batchmates and all my beloved juniors. Today myself Dheeraj Kumar is standing before you to share my innovative ideas to bring gender equality in the society. As my friends have already discussed about the introduction, theme, purpose, steps taken, steps should be taken, and awareness step. Now I will be discussing my topics in 3 parts. First, what boys could do. Second, what girls could do. Third, what society or parents can do to bring gender equality in the society. So without wasting much time, let's begin. What boys could do. First, boys should support feminism. Now the question arises, what is feminism? Feminism is a simple belief that women should get equal rights and opportunity as compared to men. Men need to understand that women are not inferior to them, rather instead should help the women to come out of 4 walls. Boys should help girls in challenging the gender stereotype in the society. Second point, boys should assist girls in doing household chores and help in upbringing of the child. वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने भी घरेलू कार्य हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना, ये सब लड़कियों का ही काम है। लड़कों को लगता है ये काम करेंगे हम छोटा हो जाएंगे, ये तो औरतों का काम है, हम काहे करें, वो काहे के लिए घर में है। आपको ये नहीं सोचना है, जब तक आप अपने माइंडसेट में चेंजिंग नहीं लाइएगा तब तक सोसाइटी में बदलाव नहीं होगा। और एक सिंपल एग्जांपल है, वी शुड हेल्प इन अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। लाइक हम सब के घर में छोटे बच्चे होते हैं, भाभी का बेटा, दीदी का बेटा, जो भी हो। जब हम लोग उसको खिलाने लग जाते हैं, जब उसको खिलाते हैं, अगर वो टॉयलेट कर दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, लीजिए भाभी इसका पैंट बदल दीजिए। आप भी तो बदल सकते हैं। Third point, boys need to be open-minded. Now, what is open-minded? I will clear it with an example. Suppose आप कल दिन जा रहे हैं कार चलाते हुए और आपके बगल से एक लड़की कार चलाते हुए गुजर गई, तो आपको शौक नहीं हो जाना है कि ये लड़की यहाँ किचन से इतनी दूर कैसे, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई, ऐसा आपको नहीं सोचना है। Instead, you need to accept that nowadays girls are challenging gender stereotype. Fourth point, respectful dialogue play. अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, लड़कियों के साथ काम पर भी जाते हैं। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो लड़का लड़की मिल के कर रहे हैं। अगर हम लोग का भाषा संयमित नहीं होगा
तो हम लोग का जो बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो हेल्दी नहीं बन पाएगा। और अगर IPR हेल्दी नहीं होगा तो जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक श्लोक बोला गया है संस्कृत कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेस्तु न पूजयन्ते सर्वस्था कार्या। अब थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। जहाँ पे नारी पूजी जाती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। ये तो था कि लड़के क्या कर सकते हैं, अब आते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, वीमेन शुड स्पीक अगेंस्ट द वायलेंस। मतलब अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जरूर वॉइस रेज कीजिए। जब तक आप खुद से आवाज नहीं उठाइएगा, जब तक आप खुद से आवाज नहीं उठाइएगा तब तक कोई और आपका मदद नहीं कर सकता है। आपको अपना लड़ाई स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका डाटा है कि 1 out of 3 women experience some sorts of violence in their lifetime. 86% of women, उसका 86% जो है वो कभी कोई हेल्प लेती ही नहीं है। अपना मम्मी को बता देगी, पापा को बताएगी, भाई को बताएगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं लेगी। दूसरा, उसी का 77% कभी किसी को बताते ही नहीं कि मेरे साथ क्राइम हुआ है। अगर कोई लड़की के साथ क्राइम हुआ, जब तक वो बताएगी नहीं दूसरे को, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, तब तक जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है वो तो क्राइम करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा। और आउट ऑफ ऑल द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 70% आर डन इन होम। सबसे ज्यादा तो असुरक्षित है लड़कियां, वो घर में ही है। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और आउट ऑफ ऑल द रेप केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया, 90% ऑफ रेप केसेस आर डन बाय देयर नोन पीपल। जो नोन आदमी है, उसका जितना भी नोन लोग है, वही 90% केस में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड पॉइंट, शुड लर्न द सेल्फ डिफेंस। आज इंडिया में 40 से ज्यादा लॉ है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन वो लॉ कब काम आएगा? आपके साथ क्राइम हो जाने के बाद वो लॉ काम आएगा। लेकिन आपको क्राइम से बचना है, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डिफेंस नहीं सीखिएगा तो लोग कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपको क्राइम हो जाएगा, फिर आप लॉ के प्रति जाएंगे। और एक बात, सेल्फ डिफेंस का जो ट्रेनिंग है वो लड़कियों को बचपन से दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जब शक्ति, संपत्ति, समृद्धि सब औरतें ही हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर है? और जब तक आप अपने आप को चंद्रमा बना के रखिएगा, लोग घूरेंगे। जिस दिन आप सूरज बन जाइएगा, लोग आपको नजर मिलाने से कतरा है। तीसरा पॉइंट, ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग। फ्रॉम ट्रेडिशनल टाइम, फीमेल आर एक्सपेक्टेड टू बी लविंग, नर्सिंग एंड ओबीडियंट. But time has come now to break away from this traditional thinking. Nowadays, girls are going in military services. They are driving trains, flying aeroplane, jets, everything they are doing. They are just breaking away from the traditional thinking. Fourth point, emphasize more on vocational education. आप 1000 बात कर लीजिए जेंडर इक्वालिटी का, कभी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? जब तक लड़की पैसा नहीं कमाएगी तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगी, और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है तब तक वो कभी अपना फैसला ले ही नहीं सकती है। और एक बात याद रखिए, the one who controls the money controls the power.
और अगर गर्ल्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज वोकेशनल ट्रेनिंग? हम आपको एग्जांपल देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई कोर्स होता है जो कि आपको पैसा कमाने के लिए एलिजिबल बना देता है। फॉर एग्जांपल मेकअप, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग, सब तो कर ही रहे हैं। मेहंदी डिजाइनिंग, कुकिंग एंड बेकिंग, सिविंग, स्टिचिंग, टेलरिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, etc. There are many courses, you can Google it and do it. For this point, the most important one, should not misuse the opportunity. Nowadays, many parents are becoming aware and they are sending their daughters away for the higher education. But in some cases, it has been seen that many girls misuses those opportunity. अब जो भी लड़के उस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज कर रहे हैं, एक बात का ख्याल रखें, आप सिर्फ अपना रास्ता नहीं रोक रहे हैं, आप अपने गांव की 10 लड़कियों का और रास्ता रोक रहे हैं। इंस्टेड अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करेंगे, आपके पापा से 10 और पापा इंस्पायर होंगे और वो भी 10 और बेटी को पढ़ाएंगे। Now coming to the last section, what society or parents need to do. First of all, parents should focus on sex education of the child. Sex education has become the hype in our society. आपको खुद से ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। नो मैटर आप अपना बच्चा को कितना अच्छा स्कूल में भेज दीजिए, सेक्स एजुकेशन नहीं ले पाएगा। स्कूल वाला खुद नहीं दे पाता, उसको खुद शर्म आता है, वो कहाँ से देगा आपको? तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसको सेक्स एजुकेशन दे, पहली बात। दूसरी बात, अगर पेरेंट्स नहीं कर रहा है, उसके जो एल्डर ब्रदर, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, ये फिर आपका जिम्मेदारी है। आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को सेक्स एजुकेशन देंगे। और एक बात बोले जाएंगे कि अगर पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चा जो है सेक्स एजुकेशन बाहर से लेगा, और अगर बच्चा बाहर से सेक्स एजुकेशन लेगा तो क्या सीखेगा वो आपको पता है और हमको पता है। दूसरा पॉइंट, गुड टच एंड बैड टच। नाउ कमिंग, गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, गुड टच जो कंफर्टेबल है, बैड टच जो अनकंफर्टेबल लगे। Now, how can we teach the children about the good touch and the bad touch? First, teach children the name of their body parts. Like जो भी बॉडी पार्ट्स है उसका सबसे सही नाम बताएंगे उसको। दूसरा, teach children about the private body parts also. And third, and the most important one, encourage open communication. Now, what is open communication? घर में एक माहौल बनना चाहिए, माहौल रहना चाहिए ताकि बच्ची लड़की अपना मन का बात मम्मी को बोल सके। अब आप हमेशा उसको डांट के रखेगा, दबा के रखेगा, वो लड़की के साथ अगर कोई क्राइम हो भी गया तो ही लड़की नहीं बता पाएगी जब तक आप घर में खुला माहौल, ओपन माहौल नहीं रखेंगे। थर्ड, टीच चिल्ड्रन व्हाट टू डू इफ समवन ट्राइज टू यूज बैड टच। थर्ड पॉइंट, पेरेंटल बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस देयर चाइल्ड। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं घर में, अपने घर में, कि अगर पापा मम्मी का किचन में हेल्प कर रहा है तो इसका 80% चांस है उसका जो बेटा होगा वो भी मम्मी का हेल्प करेगा किचन में। लेकिन अगर वही पापा अगर मम्मी पे चिल्ला रहे हैं छोटा छोटा बात के लिए कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कपड़ा क्यों नहीं धोई हो, तो देयर इज ऑल्सो चांसेस दैट उसी का बेटा मम्मी पे ही चिल्लाएगा। तो अगर आप अपना बिहेवियर घर में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका बेटा का बिहेवियर भी आपसे रेप्लिकेट होगा। जो आप रिपीट करेंगे वही आपका बेटा करेगा, वही आपकी बेटी करेगी। फर्स्ट यू नीड टू सपोर्ट women, then only your son will support the women. Now coming to the restructure the parenting process. जब एक बच्चा जन्म लेता है उसको नहीं पता होता है वो बेटी है, वो लड़का है, वो लड़की है, उसको नहीं पता होता है। लेकिन ये पेरेंटिंग ही है जो उसको बताता है कि तुम लड़का है, तुम लड़की हो। जैसे अगर कोई लड़का है उसको हम लोग खेलने के लिए क्या देते हैं, लो बेटा कार। तो कोई लड़की है तुम गुड्डा से खेलो, तुम डॉल से खेलो। फिर वही लड़का जब रोने लगता है, तुम लड़का है तुम रो नहीं सकता, यू आर स्ट्रॉन्ग।
तुम लड़की, अब वही अगर लड़की चिल्लाती, बोलते तुम लड़की हो कि चिल्लाओगी, लड़की चिल्लाती है क्या? लड़की वाला एक गुण तुम्हारे में नहीं दिखता है। अब बात आता है क्लोथिंग पे। जब क्लोथिंग का बात आता है, लड़का घर में अंडरवियर में घूम रहा है, गंजी पहने घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की का खाली स्ट्रिप दिख गया, उससे दिक्कत है। कपड़ा पहनने नहीं आता तुमको, कैसे रहती हो तुम? फिर जब वही लड़की, मान लीजिए आपका बेटी का नाम निधि है और आपको बोलना हो उसको कि एक कप चाय लेके आओ, आप क्या बोलते हैं? निधि बेटा एक कप चाय लेके आना, निधि बेटा फैन का स्विच ऑन कर दो। क्यों? निधि बेटी नहीं बोल सकते क्या? बेटी बोलने में क्या हो जाएगा उसको? वही निधि कल दिन अगर ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गई, आप क्या बोलते हैं कि वाह निधि बेटा वाह, बहुत बढ़िया। काहे वाह निधि बेटी नहीं बोल सकते? छोटा छोटा जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। और लास्ट में एक सिंपल एक चीज याद दिलाते हैं। याद है आपको 1857 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा सिंह चौहान का पोयम। कानपुर के नाना की मुगोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी।